الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बैग थोड़ा गोल कर लो मैनू नहीं करना والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان اللہ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سبحان اللہ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اللهم زد فزد ما شاء اللہ فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد إن الله هو
لذنوب أصحابهم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مرید سے آئے ہوئے مہمان قاری عبدالشکور صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے سبحان اللہ. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے کوثر ہو کے بل ہو میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کے بل ہو میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے ہم کو کہیں سرکار
مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے مسجد نعرہ تکبیر شان رسالت تاجدار ختم نبوت پاکستان ادارہ علم الفلاح مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے ہم کو کے نظارے نہیں بھولے وہ جہان کی موٹی کمر ہو کہ شجر ہو کمر ہو کہ شجر ہو آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے آقا تیری انگلی کے اشارے ہم کو کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے سبحان اللہ جو ان چاروں کی قسمت کے ستارے نہیں بھولے ان چاروں کی قسمت کے ستارے نہیں بھولے دن رات جو جنت گزارے نہیں بھولے ہم کو اپنے پاک کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ منظور صاحب بھائی منظور صاحب اور اسی طرح قاری عبدالرحمان صاحب کو جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ادنا سی تقریب کی زینت بنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں بے حد مشکور ہوں اور انتظامیہ کی طرف سے بہت ہی تہہ دل سے دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں سوا چینل والوں کا اور اے آر وائی چینل والوں کا کہ وہ اس تقریب میں تشریف لائے ہیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس تقریب کی زینت بنے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے
Girls and boys. Class 1 boys and girls. इधर आओ इधर आओ इधर आओ सामने देखो इधर मुंह ढीला छोड़ो एक मिनट छोड़ो रोको जी मैडम सामने इधर एक और गुड़िया इधर देखो मैं मिस मरियम तारी को दावे देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों को इनाम दें। मिस मरियम तारी, she is weekly test in charge of Idara Ilmufaz school system. The student who got third position in भाई, class 1, उधर चले जाओ। her name is Nisba Siddiq. Nisba Siddiq got third position in class 1. चौधरी अब्दुल खालिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मैक पर तशरीफ़ ले आएँ और कारी नवाज साहब को इनाम दें। अपने दस्त मुबारक से कारी नवाज साहब को इनाम दें। चौधरी अब्दुल खालिक साहब। सामने देखो थोड़ा सा नीचे करें जी सामने देखो गुड़िया इधर सर वेलकम जी आगे आ जाए ना हाँ इधर ऐसे ही सामने देखिए इधर सामने कैमरे में इधर ऐसे कैमरे में सर सामने देखिएगा, गिफ्ट पे हाथ रख के सामने देखिए। गिफ्ट आप लोग रखना ऐसे ऐसे इधर इधर सर थोड़ा सा क्लोज हो, थोड़ा सा साथ में ऐसे इधर देखिए। थैंक यू सर। तेरी गन मुझे आ रही है ओए अल्लाह वारस है तेरा। And the attendance award goes to Shagufta Bhuta. Shagufta Bhuta. कोई भी नहीं ला रहा, वो भाई ला रहा भाई ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਹੈ। Thank you, Miss Mariam. Please have a seat. Class 2, boys and girls section. The student who got first position in class 2, his name is Umar Hussain. बच्चे को इनाम दिलवाने के लिए मैं दावत देती हूँ कारीगर साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चे को इनाम दें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं उमर हुसैन। The student who got second position in class 2, her name is Humaira Abdul Ghaffar. Oh sorry, Humaira Bhuta. बच्चे को अवार्ड देने के लिए तशरीफ लाती हैं मुअल्लिमा उमर ज़ैफ़ा। इधर आओ सामने देखो इधर सामने इधर कैमरे में थोड़ा साथ हो जाओ। The student who got third position, her name is Muniba Abdul Ghaffar. Thank you, beta. Muniba Abdul Ghaffar got third position.
स्टेज पर तशरीफ लाए और बच्ची को अवार्ड दें। एंड द अटेंडेंस अवार्ड गोज टू आयशा अब्दुल जब्बार। भरपूर तालियों से हौसला अफजाई फरमाइए। गुजारिश करती हूँ सारे मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला देखिए ये तो दूसरी पे सब मिलके पढ़े ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मुकाम पर। सुभान अल्लाह। कुर्बान मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमा अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। है रसूल अल्लाह जैसे सब रसूलों के इमाम। है रसूल अल्लाह जैसे सब रसूलों के इमाम। उनकी उम्मत को कहा अल्लाह ने खैरुल इनाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमा अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो नहीं सकती बयां हमसे फजीलत आपकी। हो नहीं सकती बयां हमसे फजीलत आपकी। हद से भी आगे बहुत आगे है रफ़अत आपकी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमा अबादन अला हबीबिका अब आप मिल के साथ पढ़ेंगे। या इलाही पे बरसे रात दिन अबरे करम। या इलाही पे बरसे रात दिन अबरे करम। बारिशे रहमत बरसती रहे यूं दम बदम। मौला या
तशरीफ लाए हैं और बच्चे को इनाम दिया। आपके भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं समन साबिर। उड़िए इधर आओ, साथ इधर आओ, इधर आओ, साथ हो जाओ। मैडम आगे 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 ऐसे थोड़ा आगे आगे, हाँ थोड़ा सा आगे आगे, हाँ बस ठीक है। इधर सामने देखिए, ओके ऐसे रहिएगा, ओके। The student who got second position in class 5, his name is इजहारुल हक। मैं कारी शाहिद साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और बच्चे को अवार्ड दें। कारी शाहिद इकबाल साहब, प्लीज कम टू द स्टेज एंड अवार्ड द स्टूडेंट। इजहारुल हक got second position in class 5. सामने देखो, बस। Thank you so much, Ms. Ikram. Please have a seat. सामने देखिए इधर, मैडम आप ही आते हैं। इधर सामने करसा भी इधर, करसा भी इधर। एक मिनट ऐसे रहिएगा। थैंक यू। The student who got third position in class 5, her name is Mavish Makpool, and I request to Ms. Dilafroz, please come to the stage and award the student. These are the former teachers of our school. मैडम आगे आ जाइए, आगे 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 आगे। And the attendance award goes to Tafsir Ustam in class 5. Tafsir is absent. मोहम्मद तारिक साहब, प्रिंसिपल इदारा इल्मुल फलाह। शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। है समंदर जिसके अंदर आब रहमत बेबहा, इसमें है ना याब गौहर जा बजा बे इंतहा। है समंदर जिसके अंदर आब रहमत बेबहा, है समंदर जिसके अंदर आब रहमत बेबहा। इसमें है ना याब गौहर जा बजा बे इंतहा। इसमें है ना याब गौहर जा बजा बे इंतहा। ये हमें फरमा गए हैं प्यारे सैयदुल अनाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। जिसका बच्चा इस में हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान का माँ बाप आलीशान है। जिसका बच्चा इस में हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान का माँ बाप आलीशान है। हाफिज़े कुरान का माँ बाप आलीशान है। उनकी खातिर हो रहा है शहनशाही इंतजाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। हाफिज़े कुरान होंगे अर्श के साया तले, हुक्म होगा जन्नतुल फिरदौस में आओ चले। हाफिज़े कुरान होंगे अर्श के
साया तले हुक्म होगा जन्नतुल फिरदौस में आओ चले हुक्म होगा जन्नतुल फिरदौस में आओ चले सब कहेंगे आ रहे हैं ये मोहम्मद के गुलाम जो पढ़े कुरानी उसका है बड़ा ऊंचा मकाम सब कहेंगे आ रहे हैं ये मोहम्मद के गुलाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम दो जहां के शहंशाह का प्यारा प्यारा है कलाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे कारी तारिक साहब जो मुरीद के से तशरीफ लाए थे। फलाह की तरफ से दिल की अदाकारियों से खुश आमदीद कहता हूँ। इदारा हाजा के इंतज़ामिया आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद मशकूर है। तमाम अहबाब से फिर एक बार मैं आपसे ये बात कहता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के इंतहाई मकामी MPA और MNA थोड़ी ही देर के बाद आप हजरात के सामने आपके इस प्रोग्राम में आपके स्टेज पर इंशाअल्लाह तशरीफ फरमा होंगे। आप तमाम हजरात दिल जमी के साथ आने वाले मेहमानों की तालियों के साथ आने वाले मेहमानों की हौसला अफजाई फरमाएं ताकि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार आप हजरात के सामने कर सकें। अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। साहिब सदर मजलिस मोहतरम उस्ताद अकरम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौके पर सबको शेयर करने का मौका मिला वो है वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फलक के सितारों ज़मीन की बहारों फलक के सितारों ज़मीन की बहारों सभी दे मनाओ हजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाहो अरे कचकिलाहो अरे बादशाहो अरे कचकिलाहो सभी दे मनाओ हजूर आ गए हैं। साहिब सदर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानों पर जिक्र मुस्तफ़ा के चर्चे हो रहे हैं। दूध के तोहफे और इस्लाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीउल मुज़लिमीन रहमत लिल आलमीन अनीस साकिन की आमद का जिक्र हो रहा है कि जिनकी आमद का जिक्र सिद्दीक़ अकबर ने किया, फारूक आज़म ने किया कि जिनकी आमद का जिक्र अरब वालों ने किया, अजम वालों ने किया कि जिनकी आमद का जिक्र अर्श वालों ने किया कि जिनकी आमद का जिक्र मशरिक वालों ने किया, मगरिब वालों ने किया। इस शायर ने क्या कहा है? एन अरब शरीफ रचन वर्गा कोई पैदा साहिब जमाल नहीं हो सकता। एन अरब शरीफ रचन वर्गा कोई पैदा साहिब जमाल नहीं हो सकता। बल्कि सारे जमाने दे शायरां दा एड़ा सोना ख्याल नहीं हो सकता। ओंदा सानी कुल कायनात अंदर कोई माई दा लाल नहीं हो सकता। ना सिरों दी मिसाल ते एक पासे पैदा दूजा भी लाल नहीं हो सकता। साहिब सदर हम आका मौला की मिलाद की खुशी में मिलाद शरीफ करते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ कुरान पाक में भी बयान किया गया है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम तहकीक तुम्हारी तरफ तुम में से एक शान वाला रसूल आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से अपना मिलाद शरीफ बयान फरमाया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नाथ को हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी शान में नजराना कीरत पेश करना चाहता हूँ तो कुर्बान जाओ इनके मुकद्दर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अपना मिंबर शरीफ बिछाया और उस पर अपनी चादर बिछाई और फरमाया, हसन मेरे मिंबर शरीफ पर बैठकर मेरा जिक्र करो। इस मौके की क्या
इस मौके के क्या खूब तर्जुमानी किए शायर ने। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होंठों पर जब नात नबी होगी। मोहतरम सामाईन, अबू लहब काफिर था। इसकी एक लौंडी जिसका नाम सुवैबा था, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो इसने आकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई। ऐ अबू लहब, अल्लाह ने तुझे भतीजा अता फरमाया है। तो अबू लहब ने ये सुनते ही उसे शहादत की उंगली से आजाद कर दिया। जब अबू लहब मर गया तो घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा कि अबू लहब अज़ाब में मुबतला है। पूछा क्या हाल है? बुखारी शरीफ में आज भी मौजूद है। अबू लहब ने जवाब दिया, तुम्हारे बाद मुझे कोई भलाई नहीं मिली, तुम्हारे बाद मुझे कोई भलाई नहीं मिली, मगर उस सुवैबा को आजाद करने से मुझे उस उंगली के जरिए सराब किया जाता है। मालूम हुआ कि अगर एक काफिर वलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी करेगा तो उसे कब्र में भी फायदा होगा, अगर उल्टी होकर करेगा तो उसे क्यों ना फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं अपनी तकरीर इन बात पे खत्म करना चाहूंगी। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग को नौजवानों को नहीं आते, ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आपको सुनाएगा। अशला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के फाक़ी माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आपके सामने है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ये कलमा भी आपको सुना रहा है, फिर उनका तर्जमा भी आपको सुना रहा है। माशाअल्लाह असातिज़ाए कराम की, इंतज़ामिया की मेहनत नज़र आ रही है। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए इस इदारा में। अब बच्चों की हौसला अफजाई के बाद इदारा इल्मुल स्कूल सिस्टम ने अपनी साबिका टीचर्स और अपनी जो मौजूदा टीचर्स हैं उन सब की हौसला अफजाई के लिए भी इनामात रखे हैं। मैं अपने इस इदारा इल्मुल स्कूल सिस्टम की साबिका टीचर्स को भी इनामात देने के लिए इदारा इल्मुल स्कूल सिस्टम की वाइस प्रिंसिपल मिस सरिश तारिक को स्टेज पे दावत देती हूँ कि वो आएँ और हमारी साबिका टीचर्स को अवार्ड दें। प्लीज़ वेलकम आप करें मिस सरिश तारिक के लिए अपनी भरपूर तालियों में। मिस सरिश तारिक प्लीज कम ऑन द स्टेज। रिसीव करें, प्लीज वेलकम करें मिस इरम हैदर साहिबा के लिए अपनी भरपूर क्लैपिंग में। मैडम आगे मिस इरम हैदर साहिबा, आप अपनी क्लैपिंग जारी रखें। टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए अपने खुले दिल से तालियां बजाएं। आप अपनी तालियों से टीचर्स की हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट मिस किरण रियाज साहिबा को मैं स्टेज पे दावत देती हूँ कि वो आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। मिस किरण रियाज साहिबा, बच्चों अपने टीचर्स के लिए क्लैपिंग करो। जी सामने मैडम, इधर कैमरे में, इधर कैमरे में, इधर मैडम, इधर मैडम, इधर आप अपनी तालियां बजाते रहे। मिस फौजिया यूसुफ को स्टेज पे दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपना अवार्ड रिसीव करें। मिस फौजिया यूसुफ, मैडम आवाज़ नहीं आ रही, जैसे सामने मैडम, इधर कैमरे में ऐसे रहिएगा, कैमरे में देखिएगा, ऐसे रहिएगा, ऐसे मैडम इधर। नेक्स्ट मिस सोबिया उमर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव योर अवार्ड। मिस सोबिया उमर, आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ ला रही है मिस सोबिया उमर।
जैसे सामने देखिए मेरी चाहत मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। मिस दिल अफरोज साहिबा प्लीज आप स्टेज पे आएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। मिस दिल अफरोज। मेरी आन मेरी चाहत मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। इधर देख ऐसे रहिए एक मिनट। जी नेक्स्ट मिस किरण तारिक साहिबा स्टेज पे आएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। मिस किरण तारिक। फुल लाइव इसके उजाले से अपनी आप अपनी क्लैपिंग में उनको वेलकम करें। हवाले से नेक्स्ट मिस इकरा अकरम साहिबा प्लीज स्टेज पे आएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। मिस इकरा अकरम। इसके उजाले से अपनी सारी आजादी है इसके हवाले से। मेरा इसके है ईमान इसकी अजमत इसकी शान। मिस नूरीन नजीर साहिबा प्लीज स्टेज पे आ जाएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। मिस नूरीन नजीर। पाकिस्तान मैडम इधर इधर करा रहे अपने इदारे की साबका टीचर्स को अवार्ड देने के बाद अपने इदारे की जो भाई तुम किधर घूम रहे हो? थैंक यू इधर से आ जाओ। थैंक यू सो मच मिस मरियम प्लीज हैव अ सीट। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल इंचार्ज मुअल्मा उम्मे फाहद साहिबा प्लीज कम टू द स्टेज एंड awarded the मदरसा टीचर्स ऑफ इदारा इल्मुल्फा स्कूल सिस्टम। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है मुअल्मा उम्मे फाहद साहिबा। क्या बात है, आप लोग थक गए? मुझे क्लैपिंग की आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोगों की टीचर्स हैं, इन्होंने सारा साल आप लोगों पे मेहनत की है, ठीक है? बारिश धूप गर्मी सर्दी हर मौसम में वक्त पर पहुंच के उन्होंने आप लोगों को फायदा पहुंचाया है, आपको एजुकेशन दी है। अब जब उनके अवार्ड लेने का टाइम आ रहा है तो आप लोग क्लैपिंग भी नहीं कर रहे। दिस इज नॉट फेयर। A big clap should first be for all teachers. Kindly clapping for your teachers. मुअल्मा उम्मे फाहद साहिबा अवार्ड देंगी। मुअल्मा उम्मे उज़ैफा आपके तालियों में तशरीफ लाती है मुअल्मा उम्मे उज़ैफा साहिबा। मैडम इधर है। हाँ इधर ऐसे सामने देखिएगा इधर कैमरे में इधर। क्लैपिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए। मुअल्मा आसमा बशीर इसको पकड़ बिग क्लैप शुड फर्स्ट बी देयर प्लीज। जी मैडम इधर भाई साइड पे कर लो। जी मैडम इधर थोड़ा सा इधर है। हाँ इधर सामने देखिएगा। ओके थैंक यू। मुअल्मा नूरीन मुश्ताक जी मैडम सामने देखिएगा। क्लैपिंग करें। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने बच्चों की टीचर्स के लिए क्लैपिंग कर दें। मुअल्मा सितारा प्यास मुअल्मा सितारा फयाज जी मैडम मैडम सामने
हैं बाजी अजमत साहिबा। ऐसे सामने दिखेगा, कैमरे में इधर। थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। बदस्त प्रिंसिपल ऑफ इदारा फास्ट स्कूल सिस्टम कारी अब्दुल गफार साहब, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि भरपूर तालियों में खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए। प्लीज कम टू द स्टेज एंड अवॉर्डेड द मैनेजमेंट मेंबर्स ऑफ इदारा फास्ट स्कूल सिस्टम। आपके भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इदारा फास्ट स्कूल सिस्टम कारी अब्दुल गफार बत्ती साहब। Thank you so much all of you. Please have a seat. अवार्ड रिसीव करने के लिए तशरीफ लाती है वीकली टेस्ट इंचार्ज मिस मरियम तारिक। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है मिस मरियम तारिक। जोरदार तालियां। हमारे स्कूल का सिस्टम चेकिंग पे चेकिंग है, एक आंख को 3 दफे चेक किया जाता है। इंचार्ज मुअल्लिमा उम्मे फात साहिबा, प्लीज कम टू द स्टेज। आपके भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मुअल्लिमा उम्मे फात साहिबा। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। इदारा महमूदुल अतफाल यूसुफ पारक। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. अब मैं आप हजरात के सामने दावत देने लगा हूँ कारी मोहम्मद तारिक साहब को, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان ما شاء اللہ. آ کر ادارہ حاضہ کا تعارف کریں سب کو. ادارہ حاضہ کے مدرس قاری شہید اقبال صاحب. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. سنة الله في الذين خلوا من قبل. سبحان الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان اللہ ما شاء اللہ. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان اللہ ما شاء اللہ. اللہم زد فزد.
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جید تھا، جید. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. فرما رہے تھے میرے بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ادارہ علم الفلاح جو سہولیات یہ ادارہ فراہم کرتا ہے طلباء اور طالبات کے لیے، کوئی اور ادارہ اس طرح کی سہولیات فراہم نہیں کرتا. میرے بھائی، اصل تو انسان کی آخرت ہی ہوا کرتی ہے. دنیا یہ انسان کی ضرورت ہے. آقا دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او کما قال علیہ السلام، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دنیا کی اہمیت کو اپنے دلوں میں نہ رکھنا، بلکہ آخرت کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا. تم مسافروں کی طرح ہو. جس طرح مسافر کہیں پر جاتا ہے، سفر کے دوران وہ سفر میں کسی بھی جگہ پر اپنی دل جمعی نہیں کرتا، وہاں پر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس سفر کو طے کیا جائے. تو اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے سفر کی مانند ہے. یہاں تو مسلمان ایک آزمائش کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت
मुसलमानों को आजमा रहा है कि कौन क्या करता है। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने राजी करना है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना है। ये है हमारी जिंदगी का मकसद, इसी में 100% कामयाबी है। जो शख्स अल्लाह के अहकामात, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया को भी चमकाएगा, आखिरत को भी चमकाएगा। अगर अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला नहीं, तो फिर उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। दुनिया में दुनिया के चंद टके तो होंगे, सुकून नहीं होगा। जो सुकून एक गरीब को आता है वो उस अमीर को नहीं आता। जो बेअमल, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों से मुंह मोड़ने वाला, अल्लाह के अहकामात से दूर भागने वाला, उसको वो सुकून, वो चैन, वो राहत बेड पर नहीं आता, सोफों पर नहीं आती, जो एक गरीब को एक चारपाई के ऊपर, जमीन के ऊपर आती है। तो मेरे भाई, तमाम अहबाब कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना लिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बतलाया कि अल्लाह ने अपने इस पैगंबर को किस मिशन के लिए, किस मकसद के लिए, किस वजह के लिए, किस लिए भेजा है कायनात में। इस सारी कायनात को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। आका को इस कायनात में जब भेजा गया तो मकसद क्या था, अल्लाह ने खुद बतलाया, किसी आलिम ने नहीं बतलाया, किसी मुफ्ती ने नहीं बतलाया। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, ऐ पैगंबर फरमा दीजिए मेरा रास्ता अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है। तो मेरे भाई, कोशिश करें, खुद भी नेकी करें, दूसरों को भी नेकी का हुक्म दें, दूसरों को भी नेकी का हुक्म दें। देखो, एक मार्केट है, एक बाजार है, एक मोहल्ला है, बुझाएंगे तो वो आग उस मार्केट को, उस बाजार को, उस घरों को, उस मोहल्ले को राख करके रख देगी। इसी तरह अगर हम गुनाह को नहीं रोकेंगे, गुनाह को नहीं रोकेंगे, ये समझकर कि मैं तो खुद करता हूँ, अगर हम नेकी को नहीं फैलाएंगे, ये समझकर कि मैं तो नेकी करता हूँ, वो नहीं करता, वो गुनाह करता है, तो फिर इसकी भी यही मिसाल है, यही मिसाल है कि एक दिन बेदीनी की आग हमारे घरों में भी लग जाएगी, जो हमारे दिलों के सुकून को राख कर देगी। तो मेरे भाई, कोशिश करें, खुद भी नेकी करें, दूसरों को भी नेकी पर लाएं। खुदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70 मकामात पर तकरीबन वाज़ेह अल्फाज में कुरान पाक में फरमाया, व अक़ीमुस्सलाह व अक़ीमुस्सलाह। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, मेरे पैगंबर के दिल का दर्द, दिल का फिक्र, मेरे पैगंबर को यही गम कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत जिब्रील अमीन आए पूछने के लिए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे पास आना चाहते हैं, जरिए से इस बेदीनी की आग को, इस बेदीनी की हवाओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म फरमाए। व आखिरु दाअवाना सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस, मोहतरम उस्ताद कराम, मोहतरम वालिदैन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर आपको शेयर करने का मौका मिला वो है रहमतल लिल आलमीन। अरबों में रिवाज था कि बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था,
मक्के में भी रवाज था। ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी तो इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफी मिल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने क्या किया है? उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, आसमानों से भी बड़ा गुनाह, जमीन से भी बड़ा गुनाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने शराब पी है? उसने कहा, शराब से भी बड़ा गुनाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जुआ खेला है? उसने कहा, जुए से भी बड़ा गुनाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने चोरी की है? उसने कहा, चोरी से भी बड़ा गुनाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आसमानों से भी बड़ा हो, जमीन से भी बड़ा हो, सारी कायनात से बड़ा हो? तो इस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल का पैरोकार था, मैं अबू जहल का मानने वाला था। मेरे इलाके में भी अबू जहल का ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा हो जाती तो इसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे घर में कोई औलाद ना थी। 14 साल बीत गए। 14 साल बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि ये औलाद पहली है, हम इसे जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि हुकूमत का ऐलान था, अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची पैदा हो तो इसे जिंदा दफन कर दिया जाए, कहीं बड़ी होकर इसको कोई लेने ना आ जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारा नाक काटने वाला ना आ जाए। तो मैंने फैसला किया कि बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। 2 साल बीत गए, 3 साल, 4 साल, तो बच्ची भागने लगी। बच्ची हमें बहुत प्यारी लगती थी। जब मैं घर जाता तो बच्ची मेरे सीने से चिमट जाती थी तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। अहले इलाका के मुसलमानों, जिनके घर जवान बच्चियां होती हैं, इनको पता है कि बाप को बेटियों से कितनी मोहब्बत होती है और बेटियों को बाप से कितना प्यार होता है। लेकिन ये 4-5 साल की बच्ची रोजाना बाप के सीने से चिमट जाती है। लेकिन एक दिन वो कहता है कि मक्का के चौक में अबू जहल ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। इसने कहा, तेरे घर में बच्ची है और तू इसको दफन नहीं करता। आज ही मेरी पुलिस तेरे घर आएगी और इसको दफन कर देगी। मैंने वादा कर लिया कि कहीं कल को मेरी नाक न कट जाए। मैं घर आया, मैं नियत कर ली, इरादा कर लिया कि बच्ची को जिंदा दफन कर डालूंगा। मैंने फैसला कर लिया। मैंने इसकी माँ को नहीं बताया, सिर्फ ये कहा, इसको तैयार कर दे, इसको इसके मामू के पास ले जाऊंगा, इसको वहाँ छोड़ूंगा, कहीं अबू जहल के जल्लाद आकर इसको ज़िबा न कर डाले। उसकी माँ ने उसे तैयार कर दिया, उसको दुपट्टा पहना दिया, उसके कपड़े बदले, उसको गुस्ल कराया, उसकी आंखों में सुरमा लगाया। मैं जब चलने लगा तो इस बच्ची को मैंने अपने हाथों पे उठाया और सीने से लगाया और ले जाने लगा। एक खुदाल और कस्ती दरवाजे के पास पड़ी थी, मैंने वो भी उठाई और ले जाने लगा। तो इसकी माँ को पता न चला, वो समझती रही कि मेरे भाई के पास यानी बच्ची के मम्मू के पास ले जाया जा रहा है। लेकिन कहता है, मेरे दिल में बुराई थी, मैं बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया, पहाड़ों में ले गया। तो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान, मेरे मामू का घर तो इस इलाके में नहीं है। बच्ची परेशान हो गई। मैंने उसके मुंह पे तमाचा मारा, वो खामोश हो गई। पहाड़ के दामन में मैंने उसकी कब्र खोदना शुरू कर दी। मैं कब्र खोदता था तो वो बच्ची कहती थी, अब्बा जान क्या कर रहे हो? मैंने कहा खामोश हो जाओ, वो खामोश हो जाती। मैं कब्र खोद रहा था तो इसको नहीं पता था कि ये कब्र उसके लिए खोदी जा रही है। उसने अपने दुपट्टे में मिट्टी डाली और मेरे साथ वो गड्ढा खोदने में मददगार हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसी बच्ची को उठाकर गड्ढे में डाला तो वो बच्ची रो पड़ी और रो कर कहने लगी, अब्बा जान, अगर इसी तरह मुझे दफन करना था तो मुझे पहले बता देते, मैं कम से कम अपनी अम्मी की जान को आखिरी सलाम तो कराती। जब वो यहाँ तक पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकल आए। तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। क्यों रोए? मेरा पैगंबर क्यों रोया? इसलिए मेरा पैगंबर तो रहमत का पैगंबर था। उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। आदमी कहता जा रहा था, क्या पैगंबर, उस बच्ची को उठाकर जब मैंने उस घर में रखा तो वो बच्ची रो पड़ी। मैंने उसकी पुकार को न देखा, मैं उसको रखने लगा तो फिर आखिर वो बच्ची कहती है, अब्बा जान मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी आपके घर नहीं आती, मैं सारी जिंदगी उस इलाके में नहीं आती, जंगलों में वक्त गुजारा कर लूंगी। आपके घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, मैंने आपके हुक्म के खिलाफ कभी वर्जी नहीं की। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरे दिल में अबू जहल का डर था। मैंने उसको कब्र में डाल दिया और उसके सीने पे एक पत्थर रख दिया, जिससे उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ऐ दुनिया के सरदार, रहमत दो आलम, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ, क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? जिस दिन से मैंने उस बच्ची को गले में रखा उस दिन से रोजाना बच्ची मेरे ख्वाब में मुझे मिलती है और मेरे सामने कहती है, अब्बा जान क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा, आपका गिरबान होगा। ऐ अल्लाह के नबी, आज 40 दिन हो गए, मुझे नींद नहीं आई, मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ इसलिए कि तुम रहमत दो आलम हो, रहमत लिल आलमीन हो, इतने बड़े गुनाह की मुझे माफी मिल सकती है?
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पैगंबर की बातें सुनकर रो रहा है, सहाबा किराम रो रहे हैं, नबी के आंखों से मोती की तरह आंसू बह रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज है नौजवान, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है, तूने इसको हिला दिया, तूने जमीन हिला दी, तूने पहाड़ हिला दिया, तुझे तरस नहीं आया जब वो बच्ची रो रही थी, तूने हाथ क्यों नहीं रोका, तूने उसको कब्र में उतारा, वो रो रही थी, तूने हाथ क्यों नहीं रोका, तूने इसके सीने पे पत्थर रखा, तुझे तरस नहीं आया, वो मासूम जान तड़पती रही और तू जुल्म करता रहा। लेकिन याद रख, मैं रहमत लिल आलमीन हूँ, अगर आज सच्चे दिल से तू तौबा करती मेरा कलमा पड़ेगा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूँ कि वो रहमत इस गुनाह से बहुत बड़ी है, इस ज्यादती से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी रहमत लाया हूँ कि अगर तू सच्चे दिल से कलमा पड़ेगा और माफी मांगेगा, मैं इस गुनाह पर भी माफी की चादर फेर दूंगा। याद रख, आइंदा क़यामत तक के लिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत में जो शख्स 2 बच्चों की तरबियत करके उनका जवान करके उनके अच्छी तरह शादियां करेगा, मैं मोहम्मद उसके जन्नती होने का ऐलान करता हूँ। इसलिए कि मैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, दुखी बच्चियों के लिए जो बेगोरों कफन कपड़ों में उतार दी गई, मैं मोहम्मद उन सब के लिए भी रहमत का पैगंबर बनकर आया। वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाक। दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम बच्चे तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए आने वाले मेहमानों का। खड़े हो जाइए, खड़े होकर तमाम अहबाब आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। चौधरी अब्बास जट का मैं मशकूर हूँ और इसी तरह ख्वाजा अब्बास जट का भी मैं मशकूर हूँ। इसके साथ साथ आसिफ सुनियारा साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी इस महफिल की जीनत बने। इसी तरह चौधरी अब्दुल खालिक साहब का भी मैं मशकूर हूँ इस तकरीब की जीनत बने। सर इधर, सर इधर, एक मिनट वेट, इधर सामने दीजिए, ठीक है जी, सभी सामने देखते हैं, ऐसे नहीं, एक मिनट शुक्रिया जी, एक मिनट जी, सामने देखिएगा, ओके जी जी सर, नदीम सर सामने साइड चेंज करो, लीडਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ सामने के सर सामने बैकग्राउंड चला दे यार, ये ऊपर कर लो बच्चे, बैकग्राउंड चला जी सर सामने से ऐसे रहिए, एक मिनट जी सर सामने, मेरे दर्द दिल की दवा है तो तेरी शान जल्ल जलालो, मेरे दर्द दिल की दवा है तो तेरी शान जल्ल जलालो, मेरे दर्द दिल की दवा है तो तेरी शान जल्ल जलालो, मेरे दर्द दिल की दवा है तो तेरी शान जल्ल जलालो, तुझे ढूंढता हूँ मैं 400, तुझे ढूंढता हूँ मैं, तेरी शान जल्ल जलालो, तुझे ढूंढता हूँ मैं 400, तुझे ढूंढता हूँ मैं 400, तेरी शान जल्ल जलालो, मेरे दर्द दिल की दवा है तो तेरी शान जल्ल जलालो, तेरा नगमा बुलबुल खुशनवा, तेरा नगमा बुलबुल खुशनवा, तेरा नाम लेती है जा बजा, तेरा नगमा बुलबुल खुशनवा, तेरा नाम लेती है जा बजा, तेरा नगमा बुलबुल खुशनवा, तेरा नाम
درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ۔ نہ صنم قدا میں نشان ہے، نہ صنم قدا میں نشان ہے، نہ حرم میں تیرا مکان ہے، نہ صنم قدا میں نشان ہے، نہ صنم قدا میں نشان ہے، نہ حرم میں تیرا مکان ہے، تو ہے لامکا، تو ہے لامکا، تو ہے کوبکو، تو ہے لامکا، تو ہے کوبکو، تیری شان جل جلالہ۔ اس وقت خاموش نہ رہے، سبحان اللہ عبداللہ کی آواز ہے۔ تو ہے لامکا، تو ہے کوبکو، تو ہے لامکا، تو ہے کوبکو، تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ۔ یہ زمین اور یہ آسماں، یہ زمین اور یہ آسماں تیرا ذکر کرتے ہیں بے گماں، یہ زمین اور یہ آسماں تیرا ذکر کرتے ہیں بے گماں، یہ زمین اور یہ آسماں تیرا ذکر کرتے ہیں بے گماں، تیری ذات پاک ہے وحدہ، تیری ذات پاک ہے وحدہ، تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ۔ یہ دعا الہی قبول ہو، میرے دل میں عشق رسول ہو، یہ دعا الہی قبول ہو، یہ دعا الہی قبول ہو، میرے دل میں عشق رسول ہو، میرے دل کی ہے یہی آرزو، نہیں سمجھے، میرے دل کی ہے یہی آرزو، تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ۔ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، میرے درد دل کی دوا ہے تو تیری شان جل جلالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، محترم والدین، جناب چودھری محمد عباس جٹ صاحب، جناب سیٹھ محمد آصف سنیرا صاحب، جناب ذوالفقار علی اوان صاحب، محترم محمد اقبال جامی صاحب اور دیگر جو معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں، میں ادارہ حاضہ علم الفلاح کی طرف سے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج آپ الفلاح اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے سلسلے میں یہاں پہ موجود ہیں، میں اپنے تمام مہمانوں کا، والدین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادارہ حاضہ کی تمام مینجمنٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، ہمیں وقت دیا اور اس خوبصورت تقریب تقسیم انعامات میں آپ نے جو چند لمحے گزارے یا گزار رہے ہیں، میری اللہ رب العزت کے دربار میں یہ دعا ہے کہ رب العالمین
اے اس کائنات کے خالق و مالک، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے یا اللہ ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش، ایک فلاحی کوشش، ایک کامیابی کی طرف جو راستہ ہم طے کر رہے ہیں اور منزل کی جستجو میں ہیں، اے اللہ ہمیں اس میں کامیاب و کامران فرما۔ دوستو، بات یہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، کہ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، کہ سنگریزوں سے کرتے ہیں یہی لال و گوہر پیدا۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس ماحول سے، جس انوائرمنٹ سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے اور ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کو جن برائیوں کا سامنا ہے، ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ قوموں کی ترقی میں، قوموں کی بلندی میں، قوموں کے عروج میں، قوموں کو آگے لے کے جانے میں جو کردار اس قوم کا تعلیمی نظام کرتا ہے، وہ کردار کوئی اور چیز ادا نہیں کر سکتی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں آج یہ غور کرنا ہے، ہمیں آج یہ سوچنا ہے، ہمیں آج یہ فکر کرنی ہے، کیونکہ تعلیم ہے کیا، تعلیم کہتے کسے ہیں، وہ میں ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا، اس کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن is a process in which we transmit knowledge, culture, civilization to the next generation۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنا تمدن، ہم اپنا کلچر، ہم اپنی روایات اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں جو ضابطۂ حیات دیا گیا، ہمیں اپنا تعلیمی نظام کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو تعلیمی نظام عطا ہوا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہمیں وہ نظام ملا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ عزیزان من، آج مجھے انتہا درجے کی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ نظام تعلیم جو ہمیں قرآن جس کی ہدایت دیتا ہے، وہ نظام تعلیم جس کا سبق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس کی جھلک ہمیں اس ادارہ علم الفلاح کی عمارت کے نیچے میں نظر آ رہی ہے۔